called IBK here. Okay, so inside this IBK, first of all, I would like to clear you the full form of IBK. That is something called image-based here. Okay, so the full form of this IBK is image-based here. So in this IBK category, you will find two different modes. One is Gizmo and one is color. Okay, so definitely both are functions differently, and by using the combination of these two modes, we supposed to remove the chroma. So, like if you are using something like IBK color, then you need to use Gizmo or yeah. So this is how you always need to use this in PM. Okay. So how exactly it's functioning? How we supposed to create the nodes? Let's see ahead. So first, I'll take the footage for this. This is how I have taken a footage. It's a self-taken footage. Okay. So you guys can check it out. The motion. Okay, so guys, in the differentiation of chroma removal, I was like, I'm trying to show you, different types of footages. So in this footage, I'm coming with some different types of age that you can see here. Okay, it's having a little blurry edges या फिर बहुत hard edge नहीं है. आप अगर carefully देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा softness है. So definitely, if you are dealing with the different type of footages now, you will always find some different challenges with respect to edges specifically, apart from the garbage area. So you can see this. तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक डिफरेंट टाइप का एज आपको देखने को मिलेगा. सो लेट्स ट्राई विद दिस आईबीके. चेक इट आउट. दिस टाइप का क्लियर आउटपुट देता. So to use this one, first you need to use color. Okay, first IBK color, and make sure this is something once again which works on channel information. Okay, so this is something which is work on channel information, and as you will connect this color node, you will find everything is going to be blackout, or basically which might be possible in different footages. You'll find some such type of checker boxes over there. Okay, so basically by default, if you can select this node, so you'll find in its channel category, this is default comes up with the blue channel selection, and this is how it's happening. आपके फुटेज के अंदर जहाँ पे ब्लू इन्फॉर्मेशन होगा वो वाला चीज़ डिस्प्ले कर रहा होगा, और बाकी ये ब्लैक आउट कर देगा. So basically, this is coming with a pair of channel information that is blue and green only that you can see. Okay, so you didn't find the other channel here. So this is basically customized for either for your green screen or for the blue screen. So that's how you will find only two channel information here. So this is coming with the default blue channel. So like if you are removing the green channel, green chroma, don't forget to select this green channel from here. As you can select the green channel, now you can find this is what happened. Okay. So it will automatically minus your subject apart from this green area. So like generally like chroma care जिस टाइप से काम करते हैं कि ग्रीन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन को टारगेट करते हैं और उसको रिमूव करते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उल्टा है. ओके, अगर आप देखोगे तो वो ग्रीन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन की एरिया को बचाता है, तो बाकी का जो चीज़ मिला डेफिनेटली वही आपका सब्जेक्ट होता है. तो वो ये बिल्कुल इन्वर्ट वाला केस है इन सेंस. ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनरली ये ब्लैकआउट हो रहा है, मतलब ये सब्जेक्ट आपका ट्रांसमिट हो रहा है, तो इसका जो वर्किंग है ये थोड़ा सा उल्टा बनाया हुआ है. वेल, हमें उससे कोई मतलब नहीं है. आप इस केस में भी हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फाइनली हमें इसको किसी भी स्टेज में लाइक हम जब इसको इन्वर्ट करेंगे, चैनल को स्वैप कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा. हमें अल्फा से मतलब है, हम अल्फा इन्फॉर्मेशन को कभी भी स्वैप कर सकते हैं. तो मैं समझता हूँ ये सभी को ये बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ.
सबको समझ में आ रहा है क्या? जनरली होना क्या चाहिए कि ये पार्ट हमारा ब्लैक होना चाहिए, ये यहाँ से रिमूव होना चाहिए, बट अभी आप देखोगे तो सब्जेक्ट ही आपका जा चुका है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप किसी भी स्टेज में इसको इन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। वेल रेस्ट, अगर हम लोग Okay, so check out the alpha barrel so that हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ पे चीज़ों को देखेंगे. To access the alpha, basically we need to extract your subject, and for that what you need to do is just use the another IBK. This is what the Gizmo option, and inside this Gizmo option, you can see what we are having. The option is like something. You can say this. This is something FG, and FG is something which is like already and footage. Okay, and we have the BG node for different account, and you can find inside the C. Okay, so what is C basically? C is something which represent color. Okay, color information, and color information we are going to carry from this INT color curves, right? So this color node is going to be connected with this color option, that is IBK color. Okay, and this is separately for your BG, right? Now shift your viewer from this to this. Okay, like string. As you can connect this now, again you can see whatever we have adjusted the channel information that has been gone. So what you need to do is come to this option that is called Gizmo option. Select this. Okay, and inside this again this one is also coming with a blue channel information by default. So here you just have to select the green. As you can select the C color green, this information has been transferred to this gizmo, and finally you will get this thing. Okay, so this is something compulsory, or setup or node connection, which is always be happening in this style whenever you're supposed to use this option called IPK here. So I hope this connection is clear to all of you. Or is there any confusion? So I will repeat it, guys. Is anyone is having any confusion up to this much? किसी को यहाँ पे कुछ दिक्कत है सेटअप को समझने में नोट का, या सब क्लियर? Guys, quickly respond. Yes, no, clear. Okay, okay. My question is to all of you. किसी को इस कनेक्शन को समझने में क्लियर है? क्योंकि आप जब कभी भी आईपीके को यूज करने जाएंगे, ये एक कनेक्शन ऐसा है, पेयर ऑफ कनेक्शन, जो आपको हमेशा सिमिलर स्टाइल में बनाना होगा.
Okay, thank you for the confirmation, all of you. फाइन सो वंस दिस हैज बीन डन, इतना करने के बाद आप जब यहाँ पे देखोगे तो फिलहाल जो फोटो सिंबल दिए हुए हैं, उसके अंदर आप देख सकते हो क्या सिनेरियो है। ओके सो यू लाइक यहाँ पे जो मेरा ओरिजिनल प्लेट है उसके अंदर आप देखोगे तो मेरा जो स्क्रीन है उसमें काफ़ी सारे स्ट्रिंग हैं दैट यू कैन सी। तो उसकी वजह से चीज़ें आपको इस टाइप से यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो लाइक आप जब इसका अल्फा देखोगे यू कैन सी यहाँ पे इस टाइप से कुछ आपको दिखेगा। ओके, अदरवाइज इन जनरल फुटेज के अंदर आपको ये अगर जैसे ये श्रिंक है तो ये श्रिंक मेरा दिख रहा है, अगर ये नहीं है फॉर एग्जांपल आपके स्क्रीन में तो नॉइस इस फॉर्म में आपको चीज़ें आपको दिखेंगी। सो अगेन द नेक्स्ट फ्रेम इज टू एडजस्ट द अल्फा or the black and white information. So how you supposed to do this? इसको करने के लिए फिर हम लोग वापस आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले अपने आईबी के कलर से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने ग्रीन को लिया था, ग्रीन कलर को रिमूव किया था, ग्रीन का आई मीन कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट किया था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे डार्क के ऑप्शंस हैं और ये 3 ब्लॉक के आपको दिखा रहे हैं, चैनल्स के वैल्यूज दिखा रहे हैं रेड ग्रीन ब्लू के रिस्पेक्टिवली, और ये लाइट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो लाइट इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू रेड चैनल, ग्रीन चैनल, blue channel. Okay, we have this some option is also some erode option. Okay, लाइक अभी शायद आप लोगों ने अभी तक इरोड मोड को यूज नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इरोड मोड हम लोग यहाँ पे अलग से भी मिलता है। फॉर एग्जांपल आप जब यहाँ पे जाके टाइप करते हो समथिंग कॉल्ड इरोड, तो आपको इरोड के यहाँ पे 2-3 फिल्टर ऑप्शन, ब्लर ऑप्शन आपको यहाँ पे nodes अलग से मिलते हैं। एंड बेसिकली वी आर यूजिंग दिस नोड टू वर्क ऑन स्पेसिफिकली द एज पार्ट। ओके, एजेस को सप्रेस करने के लिए, ओके, या उसको यू नो इंसाइट लेने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं इरोड मोड का। तो अभी हम लोग देखेंगे तो सेम फीचर इसके अंदर भी है, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। एंड वन न्यू ऑप्शन दैट यू कैन फाइंड समथिंग पैच प्लान। तो ये किस तरीके से काम करता है एग्जैक्टली, इसको हम लोग पहले यहाँ पे देखते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें पहले इस सेटअप से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। हम डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ इतना समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समथिंग लाइक दिस, लाइक आईबी के साथ हमने यहाँ पर फुटेज लिया है, कलर लिया है और हमारा वीडियो। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिखेगा यहाँ पे अभी स्क्रीन में, वो सिर्फ आईबी के कलर वैल्यूज में जो चेंजेस करूँगा उसका इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा। सो नाउ यू कैन सी अभी यहाँ पे एजेस की क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, राइट, इस टाइप से चीज़ें दिख रही हैं। तो इसको एडजस्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन इज लाइक द साइज ऑप्शन, जिसको डेफिनेटली आप कस्टमाइज कर सकते हो ये अपने एरिया को। सो लाइक इफ यू कैन जस्ट ड्रैग दिस वैल्यू कॉल्ड साइज, so now you can see you can shrink your area as well as you can just make it sharp as well. Look at this. Okay, so this is one of the way to adjust the like कुछ चला जा रहा है या कुछ बच रहा है तो उसको इस टाइप से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। The next thing what you can find is something called और स्पेसिफिकली जो मेजर आपको कस्टमाइजेशन करना विद रिस्पेक्ट टू एजेस एंड अल्फा, सो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू इफेक्टिव इन ग्रीन चैनल ओनली बिकॉज वी आर डीलिंग विद द ग्रीन प्लेट्स हियर। सो इट्स लाइक 0, या फिर आप यहाँ पे अगर मैं इसको रैंडम कोई वैल्यू देता हूँ 2-3, तो मैं इस टाइप से एक वैल्यू दे सकता हूँ और वो डिटेक्ट कर लेगा अपने कलर्स को। और फिर यहाँ से ये न्यू का फंडा है, ये पूरे नोड का फंडा है, इट्स नॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर टूल। कि आप जब किसी भी वैल्यू पे यहाँ पे काम करते हो तो उसके 2 तरीके, या तो स्लाइडर है तो आप स्लाइड कर लोगे या अपनी वैल्यू पुट कर दोगे। वैल्यू पुट करने के बाद जैसे माया में आप लोग मिडिल बटन माउस का यूज करते होगे और ड्रैग करते होगे तो वैल्यू वहाँ पे वेरी करता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी कर सकते हो। बट मेक श्योर कि इनिशियल स्टेज में उसको एक वैल्यू आपको देनी होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैं एक कोई भी टाइप से एक वैल्यू देता हूँ 2 और फिर उसको कस्टमाइज करना स्टार्ट करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी आई विल गेट मोर कमांड ऑन माय एजेस हियर। लुक, so I want to make it rough, smooth or something like this. You can see this. Okay.
look at this. तो अगर मान लीजिए कि मुझे इसका रेंज अगर मैं बिल्कुल नेगेटिव की तरफ लेकर के चला जाता हूँ तो नाउ सो यू कैन सी ये फिर इसको भी यहाँ से यू नो कैच करना कवर करना स्टार्ट कर देता है। तो लाइक इस टाइप का कुछ सीन है, अगर कोई गार्बेज है, कोई इस टाइप का सीन है आपके प्लेट के अंदर, तो आप इसके रेंज को कस्टमाइज करके उसको भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे लाइट इंफॉर्मेशन की भी वैल्यू दी हुई है। स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट 1 you can see. So you just have to drag this fellow, you can see. तो ये लाइट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पिक्सेल्स को ग्रैब करना स्टार्ट करता है, you can see this. तो जिस हिसाब से आपके प्लेट के अंदर लाइट इंफॉर्मेशन होगी उसके हिसाब से आप इसकी वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हो और अपने सब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। So these two options specifically, the color option in dark and the light option is very important. And please check it out. आप अगर गलत वैल्यू ड्रा कर रहे होगे तो शायद आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। रेड चैनल का देने का सेंस यहाँ पे ये है कि डेफिनेटली आप स्किन टोन को प्रिजर्व कर सके। स्किन वाला मामला जो है तो लाइक उसको अगर कहीं कुछ डैमेज हो रहा है तो उसको आप संभाल सके, और डेफिनेटली ग्रीन और ब्लू का सेंस तो है ही है, ठीक है। दूसरा इरोड का ऑप्शन है, तो लाइक इरोड के ऑप्शन से नाउ यू कैन सी जैसे मैं इसको ड्रैग करता हूँ यू कैन सी दिस इज गोइंग टू बी ओनली एक्टिव दिस ईच पार्ट, लुक एट दिस। तो आप इसको ऐसे एक्सपैंड कर सकते हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो अपनी इमेजेस को एक बार क्रोमा रिमूव करने के बाद, क्योंकि दिस इज हाउ इट्स हैपनिंग, ओके। And we have something called patch black. This is a beautiful tool inside the smoke, and you can see पूरे सब्जेक्ट को इस टाइप से आप यू नो पुश कर सकते हो अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, ओके। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड पैच ब्लैक, इस टाइप से कुछ काम करता है, ठीक है। और ये ओके साथ ही साथ आप यहाँ पे तो ये मैं इंटेंशनली इस टाइप से दिखा रहा हूँ, बट जनरली जब हम लोग मैच करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ से अपने अल्फा इंफॉर्मेशन के हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करेंगे कि हमें क्या फाइनली हमें क्या मिल रहा है, और पैरेलल हम लोग उसका कलर चैनल भी चेक करते हुए जाएंगे। तो लाइक यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो व्हाट वी आर रीडिंग एग्जैक्टली हियर, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को एडजस्ट करेंगे। सो नाउ यू कैन सी हियर सम ग्रीन पिक्सेल्स, ओके। सो यू जस्ट remove this option, okay. But the next if we'll talk about कि ये जो पैचेस यहाँ पे मिल रहे हैं इनका हमें क्या करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एक पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था कि आफ्टर क्रोमा आपके पास जो अल्फा इंफॉर्मेशन आती है इसको एडजस्ट करने के लिए आप ग्रेड टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। और अब अगर हम लोग गिज़्मो वाले ऑप्शंस में आते हैं तो यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस हम लोग को मिलता है जिससे हम इसको थोड़ा सा और बैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ ऑटो स्लिप्स करके ऑप्शंस है, तो ये स्पेसिफिकली चैनल्स पे बने हुए। सो लाइक यू कैन सी एज यू कैन हिट दिस ऑप्शन ऑटो स्लिप्स, सो नाउ ऑटो लेबल्स बेसिकली, तो ये ऑटोमेटिकली मिड टोन हाईलाइट और शैडो को यहाँ पे बैलेंस करता है, और ये जो पैचेस और नॉइज जैसी चीज़ें जो आफ्टर क्रोमा बचती है उसको काफ़ी हद तक यहाँ पे एडजस्ट करके आपको ये दे देगा। You can check out this thing in alpha also. So this is what the scenario, you can say this. So like lots of noise after the chroma जो आपका बजता है वो ऑटो लेवल्स को ऑन कर देने से उसको, क्योंकि ये स्पेसिफिकली ये जो बचने वाली चीज़ होती है ये मिड टोन से बिलोंग करती है और शैडो से, तो उसको ये बैलेंस कर देता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि फिर आपका सब्जेक्ट भी इसमें आता है तो फिर वो भी अफेक्ट होता है पैरेलल, ओके। तो उसको भी आपको थोड़ा सा देखना है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे ये जो मेरा स्किन टोन है वो पूरी तरीके से सप्रेस हो रहा है। तो इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा चैनल को मैं किस टाइप से बैलेंस करूँ कि ये इंफॉर्मेशन मेरा प्रिजर्व रहे एक्चुअल स्किन टोन में। तो यहाँ पे मैं येलो को ऑन करता हूँ तो यू कैन सी कि जो मेरा स्किन टोन जो जा रहा था वो मेरा वापस आ जाता है, यू कैन सी दिस। तो यहाँ पे चैनल्स हैं लाइक आफ्टर लेटर ऑन ये ऑटो लेवल्स यहाँ पे सबको एडजस्ट किया, मैंने येलो को माइनस कर दिया, येलो को तो नहीं करना है बेसिकली, तो वो चीज़ यहाँ पे प्रिजर्व होके आ जाएगी। तो आपका स्किन या तो स्किन में बेसिकली जो रिफ्लेक्शंस होते हैं उसमें ये कलर्स आपके पास अवेलेबल है, तो कोई ना कोई कलर चैनल ऐसा होगा जो आपके प्लेट को बैलेंस कर देगा, ठीक है। तो ये सबको समझ में आया ये क्या चीज़ है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस, इसके थ्रू बहुत क्विकली आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। This option is clear to all of you inside the gizmo option. Like how to balance the noise. What are the limitation of key light? Okay, we'll discuss the key light.
Vishal, we discussed the key light. Why? Yes, this is the question. Why need so many gears? Okay, good question. अच्छा, और किसी के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन नहीं किया? Why we need so many gears? Good question. और किसी के दिमाग में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया? Why we need so many gears? ठीक है, तो मैं इसका बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे तरीके से आंसर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपने अभी तक जो भी सॉफ्टवेयर्स पढ़े होंगे या जहाँ कहीं पे ये गियर्स वाला टूल्स पढ़े होंगे, आपने देखा होगा कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर कलर इन्फॉर्मेशन पे काम करने का कॉन्सेप्ट होता है। गियर कोई सा भी हो, वो सिमिलर कलर को पिक करेगा और उसको रिमूव करेगा। ये इसका बेसिक फंडामेंटल है, गियर का वर्किंग स्टाइल ये होता है। अब इसमें सीन ऐसा है कि डिफरेंट फुटेजेस के अंदर, मतलब अलग अलग फुटेजेस जब आप लेकर के आते हो, तो उसमें आप देखते हो कि हर फुटेज के अंदर जो लाइट इन्फॉर्मेशन होता है और जो कलर इन्फॉर्मेशन होता है, जो हम लोग कैच करके कैमरे से लेके आते हैं, वो अलग अलग प्लेट में अलग अलग सीन होता है। और ये पूरा का पूरा मामला, इसका बेसिक जो जड़ है वो लाइट ही है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ इमेजेस से समझने की कोशिश करते हैं किसी फुटेजेस से। Got some place. जैसे यहाँ पे अगर हम लोग आप अगर ग्रीन स्क्रीन को देखोगे बैकग्राउंड में, तो है तो सभी लोग ग्रीन ही कलर, व्हाट, बट इफ यू कैन सी दिस वन, सो दिस वन एंड दिस वन, तो लाइक हर किसी में आपको लाइट इंफॉर्मेशन एक अलग स्टाइल में मिलती है। ये एक अलग अलग स्टाइल में ग्रीन आपको दिख रहा होगा। और लाइट स्टाइल बोलने का मतलब मेरा शेड से भी है, मेरे कलर में वेरिएशन से भी है, और लाइट किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है स्क्रीन में उससे भी है। क्योंकि लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन स्क्रीन में जैसा होगा, उसी के हिसाब से कलर के शेड्स वहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट सीन में आप, जबकि ओवरऑल सारे गियर्स का काम यही है कि वो सिमिलर पिक्सेल्स को पकड़ के, सिमिलर कलर इंफॉर्मेशन पिक्सेल्स को पकड़ के वो उसको रिमूव करता है, कैप्चर करता है, हटाता है। तो वहां पे आप देखोगे तो हर किसी का वर्किंग स्टाइल अलग अलग है, हर गियर का वर्किंग स्टाइल अलग, वो अलग तरीके से कैप्चर करता है। जैसे अभी आपने देखा, हम लोग यहाँ पे आईबीके डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका स्टाइल बिल्कुल ऑपोजिट है। ये सीधे स्क्रीन को कैप्चर नहीं करता है, ये क्या करता है, स्क्रीन को बेसिकली वो करता है स्क्रीन को ये, लेकिन वो माइनस करके क्या देता है, सब्जेक्ट को। तो जो स्क्रीन कैप्चर कर रहा है उसको प्रिजर्व करता है। जनरली जो दूसरे गियर होते हैं वो जो सिमिलर कलर इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको रिमूव करते हैं, और ये इसको प्रिजर्व कर रहा है। तो दिस इज व्हाट, हर गियर का वर्किंग स्टाइल अलग है, और अलग इसलिए बनाया गया है क्योंकि लाइट इंफॉर्मेशन हर बार वेरी करती है डिफरेंट प्लेट्स पे। और लाइट इंफॉर्मेशन चूंकि वेरी करती है, तो हर बार हम एक अलग इंफॉर्मेशन लेकर के कैप्चर करके आते हैं। तो उस केस में हमें चाहिए होगा कि डिफरेंट टूल्स जो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करें, ताकि हम इजीली अच्छे तरीके से क्रोमा को रिमूव कर सकें। जबकि सारे गियर का जो कोर कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल जो वर्किंग स्टाइल है, वो सिमिलर कलर इंफॉर्मेशन पे ही है। तो आई होप विशाल यू विल गेट द आंसर कि क्या है और कैसे। जैसे हम लोगों ने की लाइट का मैंने डिस्कशन किया था थोड़ा सा पिछले क्लास में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंडरी बाउंस होता है, एक बार कलर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसको भी वो सप्रेस कर देता है। जनरली हमें क्या होता है कि क्रोमा हटाते हैं, और फिर जब रिफ्लेक्शन आता है तो उसको हम लोग हटाने के लिए एक अलग से कुछ जुगाड़ करते हैं, सप्रेस करते हैं कलर को, फलना ढमका, इस टाइप के कलर करेक्शन टूल्स भी उसमें ऐड करने पड़ते हैं। बट आप जैसे ही वहां पे ऐड करोगे की लाइट, तो आप देखोगे कि वो मेन कलर जो आपका बैकग्राउंड का कलर है उसको तो रिमूव करेगा ही करेगा। उसके अलावा अगर कहीं कोई रिफ्लेक्शन है सिमिलर कलर, क्रोमा कलर का, तो उसको भी वो पैरेलल सप्रेस कर देता है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आईबीके का वर्किंग स्टाइल देखो, आप की लाइट का वर्किंग स्टाइल देखो, और उससे पहले जो हमने प्रीमिट देखा उसका वर्किंग स्टाइल देखो, तो सब में आपको कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को मिलेगा। और ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि हर बार हम एक डिफरेंट इंफॉर्मेशन के साथ एंट्री करते हैं क्रोमा हटाने के लिए। सो दिस इज हाउ इट्स हैपनिंग। सो आई होप यू विल गेट द आंसर, विशाल। ओके, एनीवन एल्स हैविंग एनी मोर क्वेश्चन? दिमाग में कुछ और चल रहा है किसी का कुछ? दैट्स गुड। नहीं चल रहा है तो ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे समझ में आ गया आप लोगों को कि लाइक ये गिज्मो का क्या फंडा रहेगा और कलर का क्या फंडा रहेगा? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, कब किसको कहाँ कैसे यूज करना है?
गिज्मो का क्या मेन फंक्शन है, मुख्य रूप से क्या फंक्शन है, और कलर का मुख्य रूप से क्या फंक्शन है, ये समझ में आ गया। By using the color you have to customize the channel value, और उसके थ्रू आप अपने जो भी आपका इंफॉर्मेशन है ग्रीन या ब्लू, उसको आप यहाँ से इस टाइप से रिमूव करते हो। ओके, और गिज्मो की हेल्प से आपको क्या करना है कि गिज्मो की हेल्प से आप जो आपके पास नॉइज बच रहा है या फिर आपके कलर कुछ इस टाइप से जा रहे हैं, तो आप उस पर यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस ऑप्शन कॉल्ड ऑटो लेबल्स। ओके, वेल अपार्ट फ्रॉम दिस, थोड़ा सा अगर और इसको हम लोग जैसे मैंने यहाँ पे इरोड की भी बात की हुई है, तो लाइक अभी जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है वो कुछ इस टाइप से मिल रहा है। ओके, एंड लेट्स take the alpha to better understand. After doing the Gizmo node this year, like Gizmo का ये setting करने के बाद भी, अभी भी, अभी भी इस केस में भी मुझे यू कैन सी अभी भी यहाँ पे कुछ चीजें बची हुई हैं, यू कैन सी राइट। तो ये पूरी तरीके से क्लीन नहीं हुआ है। ये लाइक बिफोर, लाइक अप टू द कलर, अप टू द आईबीके कलर ये सिचुएशन थी, और जब हमने किस्मों को थोड़ा सा एडजस्ट किया तो फिर हमारे पास ये सिचुएशन मिला हमें। बट स्टिल अभी भी चीजें यहाँ पे कुछ कुछ गड़बड़ है। ओके, तो फिर यहाँ पे हम लोग कुछ और भी ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया इरोड मोड का, तो क्यों ना हम लोग एक यहाँ पे इरोड मोड यूज करके देख लेते हैं। सो आई जस्ट यूज दिस इरोड मोड, ओके, एंड जस्ट ऐड इट। ओके, यू कैन सी ऐड करने से वो काफी कुछ डिफॉल्ट वैल्यू में ही काफी कुछ चीजें निकल गई। यू कैन सी दिस, लुक एट दिस। ओके, सो बेसिकली ये जो बचे हुए इंफॉर्मेशन होते हैं एजेस, शार्प एजेस, उसी पे काम करने के लिए इसको स्पेसिफिकली बनाया। और साइड में आप अपने सब्जेक्ट के भी एज को देखोगे तो उसको भी ये 1 पिक्सल, ये इंफॉर्मेशन कितनी होगी हमारे पास, मुश्किल से 1 पिक्सल की इंफॉर्मेशन होगी। तो इसको ये सप्रेस करके तो हटाएगा, तो ये ओवरऑल प्लेट में 1 पिक्सल चीजों को सप्रेस कर रहा है। यहाँ पे इसकी वैल्यू देखिए साइज 1 रखा हुआ है, दैट मीन 1 पिक्सल वो ओवरऑल सबको सप्रेस कर रहा है। तो उसमें आपका सब्जेक्ट भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज, अब बेसिकली अगर किसी ने चोकर जैसा एक ऑप्शन आता है, मैटे चोकर आफ्टर इफेक्ट के अंदर, अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ यूज किया होगा तो ये वही चीज है, जो पूरे प्लेट्स के अंदर आपको कितने पिक्सल चीजों को सप्रेस करना है उस पे बाय डिफॉल्ट काम करती है। सो लाइक इफ यू कैन हिट द वैल्यू दिस, यू कैन सी दिस, आई थिंक ये अल्फा में ज़्यादा बेटर आपको दिखेगा। सो इफ यू कैन जस्ट हिट दिस वैल्यू, जस्ट इनेबल दिस। Okay, so like here you can see ये इस टाइप से इसको कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा, और अगर नेगेटिव वैल्यू लेके जाएंगे तो ये चीजों को एक्सपेंड भी करेगा। तो कई बार क्रोमा में दो ही केस होता है, या तो एजेस बच जाते हैं या तो ज्यादा चले जाते हैं। तो दोनों केस में आप इस मोड को यूज कर सकते हो। अगर कुछ चीज चला जाता है तो अगर वहां पे फिर हमें चीजों को एक्सपेंड करना पड़ता है, तो उस केस में भी आप इस मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब इसको एक्सपेंड करते हो इस टाइप से, तो ये देखो ये वापस बाकी चीज़ों को रिवेल करना स्टार्ट करता है, और आप जब इसको ड्रैग करते हो तो ये इस टाइप से इसको यहाँ पे क्लीन भी करता है। ओके, सो दिस विल बी वेरी मच इक्वल टू समथिंग the matte choker option inside the After Effects, right? Okay, so I hope it will be clear to all of you. Is it? What is the funda of erode mode inside Neo? वेल इसका यूज और भी कंपोजिशन में है, बट फिलहाल हम लोग कियर पढ़ रहे हैं, तो कियर में ये चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इज इट क्लियर? ठीक है, तो सेम फाइल को मैंने कुछ इसी तरीके से यहाँ पे कुछ एप्रोप्रिएट मैंने बैकग्राउंड ढूंढा है और उसको यहाँ पे कॉप करने की कोशिश की है। आई शो यू, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। यू कैन सी दिस, मैंने एक प्लेट रखा है पीछे बैकग्राउंड में। दिस इज माय फाइनल आउटपुट, यू कैन सी। सो दिस इज द ओरिजिनल प्लेट। थोड़ा सा कॉम का साइज को मैंने प्री साइज किया हुआ है, इसलिए वो थोड़ा सा आपको सिकुड़ता हुआ दिखेगा। ओके, this is the original plate, that's got the motion, and you can see एक कुछ फ्रेम ऐसे हैं स्टार्टिंग के, जहाँ पे यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ये ग्लास वाला प्रॉब्लम है यहाँ पे। check it out, see this, so this is the original plate, and check with this final one। okay,
And this is what you can see inside the whole pipeline. This is what I have used the Gizmo, and I use some node here and just simply the back. That's it. और मैंने यहाँ पे कुछ भी खास नहीं किया हुआ है, कोई मास्क नहीं है मेरे कंपोजिशन में, कुछ नहीं है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि मैंने क्लास को बचाने के लिए फलना ढमका मास्क किया, एनिमेट किया, फोटो किया, कुछ भी नहीं किया। फाइनली हम लोग वो करते ही हैं। अगर आपका कुछ काम नहीं कर रहा है तो फिर आप क्या करोगे? आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता, आपको चीज़ों को रोटो करना पड़ता है। और आपको पता है कि रोटो करने का मतलब फिर ये हो जाएगा कि बहुत बारीकी तरीके से शेप को मैनेज करना पड़ेगा। इट विल टेक टाइम। सो दैट इज द लास्ट स्टेज गाइस। मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को, लाइक उनको जरा सा कुछ हुआ वो मास्क करके और एनिमेट करना स्टार्ट कर देता है। दैट इज लाइक द फाइनल वन। वो सबको, पूरी दुनिया को पता है कि अगर कुछ नहीं होगा तो लास्ट में वही करना है तुमको। तो उससे पहले इतनी सारी चीजें हैं जिससे आप सॉल्व कर सकते हो चीजों को। तो बस यू हैव टू गो विद द प्रॉपर्टीज ऑफ केयर एंड चेक इट आउट वेरी केयरफुली। कहीं ना कहीं कुछ ना ऐसे ऑप्शंस होंगे जहां से आप चीजों को प्रिजर्व कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो अगर ये फाइनली ये सारी चीजें काम नहीं करती है, देन यू विल गो फॉर इट। तो मैं यही चीज यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मैंने कोई मास्क नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। एंड यू कैन सी मैं इतना ब्लर सा एज भी निकाल के लेके आ गया हूँ इसी से। ठीक है, लुक एट दिस। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेज में हम लोग देखेंगे, लाइक अभी आप देख सकते हो जैसे, और बैकग्राउंड के लिए यहाँ पे कुछ भी अलग से नहीं है। यू कैन सी जो गेस्मो में मेरा बीजी मोड है, मैंने बस उसी को रिफॉर्मेट करके रिसाइज करके और सिंपल तरीके से बैकग्राउंड कर दिया। That's it. कुछ भी नया नहीं करना। तो वेल आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे आप मेरे प्लेट्स के अंदर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कुछ track points भी लगाए हुए हैं। So you can see here I've just put in some track points। हालांकि कैमरे में मेरा यहाँ पे मोशन नहीं है, बट इसी का मेरे पास दूसरा शॉट भी मैंने लिया हुआ जिसमें मैंने थोड़ा सा मूवमेंट भी रखा है। तो अभी हम लोग बाकी एक दो कीयर को और आगे देखेंगे। उसके बाद विल कम अप टू द ट्रैक पॉइंट ऑल्सो। तो डेफिनेटली हमारा जो फाइनल शॉट होगा वो इस टाइप से स्टार्टिंग नहीं होगा जैसा अभी आपको देखने को मिल रहा है कि जो कैरेक्टर है वो सिर्फ मूविंग है, बाकी बैकग्राउंड मेरा स्टैटिक है। सो विल ट्राई टू मैच द मोशन ऑफ दिस कैरेक्टर विद दिस बीजी प्लेट आल्सो एंड एप्रोप्रिएट मोशन, राइट? सो इट्स लाइक आज की डेट में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी कीयर्स की भी बात करेंगे, लाइक प्राइम हम लोग ह्यू कीयर और की लाइट को भी नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सो लाइक आप लोग भी जैसे जैसे सेशंस डिलीवर हो रहे हैं, टॉपिक्स डिलीवर हो रहे हैं, कुछ करके मुझे शेयर कीजिए। आप लोग बिल्कुल साइलेंट है। मेरे को स्टार्टिंग में मैट पेंट इमेज बेस्ड जो मैंने मैट पेंट बताया था मास्किंग, उसमें एक दो लोगों ने मुझे कुछ करके भेजा था, उसके बाद से किसी का कोई वर्क नहीं आया। तो क्या मैं जान सकता हूँ आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है? इट्स एन ऑनलाइन मोड गाइस। तो लाइक अब फील फ्री, आपको अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो बोलोगे तो मैं हेल्प कर पाऊंगा, नहीं बोलोगे तो हाउ कुड आई नो कि क्या इशू हो रहा है तुम्हारे साथ, क्या प्रॉब्लम है। We have done with the single frame matte paint. We have done with the roto. Now we are continue on this chroma gear topic. So like nobody has sent me any file regarding to this previous topics. कुछ लोगों ने मुझे शेयर किया था स्टार्टिंग में मास्किंग वाला एग्जाम्पल्स, उसके बाद फिर किसी का कोई भी काम नहीं दिखा है। क्यों आप लोग नहीं कर रहे हो? लाइक व्हाट यू गाइस डूइंग, क्यों नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? Vishal, are you doing roto or not? What? Vishal. Vishal, are you there? Yes, sir. Okay, that's fine. Are you doing roto or not? How many frames you have taken the reference? For how many frames? Vishal.
I'll send you the screenshot. Okay, that's good. List of the people. Here we have 20 people. Tushar, you have login twice time. Tushar, नो सर. but here I can see the double login here. Rest of the people, come on, quickly respond me. What I asking is like we have done with the roto. So like, have you guys taken any reference to make roto? Because what I am expecting, like at least 50, 60 frame you have to do the practice for the roto and share me as well. Like मुझे आपको share भी करना है कि आपने क्या बनाया, कैसे बनाया. किसी को रेफरेंस ढूंढने में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है. टेल मी. हेलो. कुछ बोलेंगे नहीं तो कैसे समझूंगा. वेल तो अब क्या एक करके नाम पकड़ के मुझे पकड़ना पड़ेगा सभी लोगों को. मनीष श्रीवास्तव हैज टेकन द 50 फ्रेंड्स फोटो सर. दैट्स गुड, वेरी गुड मनीष. ओके, बाकी लोग. सर केस तो मैं सर. एक रोटो कर रहा था, उसमें ना मतलब बहुत ज़्यादा मोमेंट है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा आगे मैं कैसे करूं. तो आप मुझे हम सबको अपना फुटेज दिखा सकते हैं स्क्रीन शेयर करके. यस सर. शेयर योर स्क्रीन. Yeah. Great footage you have taken. Nice to try. Play it properly. How many frame this plate is? Like 50, 60? 67 सर. 60 frame. Okay. So like यहाँ पे क्या नहीं समझ में आ रहा था सर? Tell me. सर एक तो ये शूज के नीचे आगे जाके हम सारी मतलब गायब हो जा रहे हैं. ओके जरा पॉज करना. फुल स्क्रीन करो. आपने कहीं कुछ मास्क ड्रॉ किया है आई थिंक. हाँ ये जरा दिखाना. अच्छा, तो अब आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आगे चल जैसे करके आगे जा रहा है तो गायब हो जा रहा है. अब फिर मेरे को मतलब बहुत सारे पॉइंट हो जा रहे हैं आगे जाके. ये मतलब ओवरलैपिंग में गायब हो रहा है उसकी बात कर रहे हो. जब पैर ओवरलैप हो रहा है तो गायब हो रहा है उसकी बात कर रहे हो. अब सर जैसे ये स्टार्टिंग में मैं बहुत सारे पॉइंट ले लिए, अब आगे जा रहा हूँ, मेरे को इतनी जरूरत नहीं है पॉइंट की. तो एग्जैक्टली ये चीज़ मैंने आपको बताया था मास्किंग करते समय, पढ़ते समय, कि आपको पहले तो क्या होता है ना, जब हम लोग मास्क ड्रॉ कर रहे होते हैं ना, तब आपको जितना पॉइंट्स की जरूरत होती है आप डालिए, भरपूर पॉइंट्स डालिए जब आप ड्रॉ कर रहे होते हो. और एक बार ड्रॉ करने के बाद आपको आपके मास्क को रिफाइन करना है. दैट मीन्स जो अनवांटेड वर्टाइसेस है उनको वहां से हटाना है और आपको कम वर्टेक्स के साथ और उसके हैंडल्स के साथ उसको मैनेज करना है सेप को. ये चीज मैंने बोला था. और ये एनिमेशन स्टार्ट करने के बाद अगर अब तुम सोचोगे कि कुछ कर लूं, हटा दूं, तो इट्स नॉट पॉसिबल ना, वो गड़बड़ हो जाएगा पूरा. तो ये जो फिल्ट्रेशन है वर्टेक्स का, ये ड्यूरिंग आफ्टर once you have draw the mask, then you have to take this action before starting the animation of mask को animation start करने से पहले. तो अभी तो कुछ हो ही नहीं सकता. So it's better you can just delete it and you can draw a new mask, right? पहली चीज. दूसरा क्या प्रॉब्लम आ रहा है तुमको कि ये जब इंटरसेक्शन हो रहा है तो गायब हो जा रहा है, right? What is the frame? फ्रेम दिखाना मुझे, कौन सा फ्रेम में तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, उस फ्रेम पे जाके रोको. Show me the frame. Okay, hold up. I think intersection वाला फ्रेम है. उससे ये फ्रेम है, इस फ्रेम में प्रॉब्लम है, पीछे वाले फ्रेम में एक फ्रेम पीछे है सर. इस फ्रेम में प्रॉब्लम आ रहा है. यस सर. तो इस फ्रेम में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? व्हाट इज द, मैं इसको कैसे दोबारा वैसे हाँ तो ये दोबारा ये
ये वर्टेक्स का प्रॉब्लम है ना, और वर्टेक्स कम करो और जितना दिख रहा है उतना कैप्चर करो। कोई एक ऐसा फ्रेम है क्या इसमें जिसमें बिल्कुल ही दूसरा दिख रहा है? ऐसा कोई फ्रेम है क्या? डोंट थिंक सो। कुछ ना कुछ तो दिख रहा होगा दूसरे फ्रेम का। कोई एक ऐसा फ्रेम है इस पूरे मोशन में जिसमें सिर्फ एक ही पैर दिख रहा है, कभी भी दूसरा नहीं दिख रहा है? ऐसा कोई फ्रेम है क्या पूरे फुटेज में? नहीं, ऐसा कोई फ्रेम नहीं, ऐसा कोई फ्रेम नहीं। नहीं है सर। दैट्स ऑल फाइन, यस। तो वहां पे आपके पास देखो, आपके शूज वाले पार्ट में अगर वर्टाइसेस कम होंगे ना, तो आप इजीली उसको मैनेज कर सकते हो। आपको जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि आप बहुत सारे वर्टेक्स लेके बैठे हो, ठीक है? सर मैं इस हिसाब अपार्ट से फ्रॉम लेके दिस, बैठा था सर, क्योंकि इस हाँ फ्रेम जी, से मैंने स्टार्ट करा था सर, मेन फ्रेम। हम्म हम्म अब इसमें इतने पॉइंट थे, मैंने उस हिसाब से करा था। नहीं, स्टिल जूम करो उसको, जूम करो, जूम करो, जूम करो, जूम करो। ओके ओके ओके। अब इसमें आपको क्या लगता है कि दिस इज द सफिशिएंट वन, लाइक इसमें से कुछ भी रिमूव करने जैसा नहीं है? दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग? आपको ऐसा लग रहा है इसमें से कुछ माइनस नहीं हो सकता है? तो शायद आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें से कुछ माइनस नहीं हो सकता है? कोई सर जगह ये नहीं है माइनस करने का? थोड़े बहुत बहुत सारे हैं। पॉइंट्स, बहुत सारे। ये जो ग्रिप है ना, शूज के जो ग्रिप्स है ना, उसमें जो आपने कॉर्नर्स के लिए जैसे 4 वहां पे पॉइंट्स लिए हुए हैं ना, तो वो 3 पॉइंट्स लिए हुए हैं, तो वो एक पॉइंट में काम हो जाएगा। वो नीचे बॉटम में एक पॉइंट आएगा, उसके हैंडल को मैनेज करेंगे, एक पॉइंट में काम हो जाएगा। वो हर जगह से एक एक दो दो वर्टेक्स वहां से निकल जाएंगे ग्रिपिंग में से। और उसके बाद ऊपर वाला जो फ्रेम है उसमें से भी बहुत सारी चीजें माइनस होंगी। सर नहीं तो वो आगे जाके वो नहीं कर सकते, मतलब एक ही मैं यहीं से डायरेक्ट ले लूँ। और जरा एक फ्रेम और आगे बढ़ाना, शो मी द शूज सिचुएशन क्या है, और इसमें क्या हो सकता है मैं देखता हूँ। और आगे, और आगे लेके जाओ। अब देखो, इस सीन में क्या है, जैसे शूज लैंड होता है ना, आपका फुट लैंड होता है जैसे ही, तो ग्रिपिंग तो दिखती नहीं है, गेटिंग ओके? तो आप ऐसा भी कर सकते हो ना कि जो ग्रिप वाला मास्क है, जैसे आपने ये वाला मास्क बनाया ग्रिप वाला मास्क, तो दैट्स फाइन, ओके ठीक है। इसको सिर्फ इस फ्रेम के लिए यूज कर लो। जब कभी भी पैर हवा में होगा, आगे लेके जाओ, आगे लेकर के जाओ, आगे वापस जब पैर उठ रहा है और आगे लेकर के जाओ, तो फिर यहाँ पे भी ग्रिप्स दिख रहे हैं, राइट? तो आप ऐसा कर सकते हो कि ये वाला जो मास्क है ना, ये आप तब यूज करो जब आपकी ग्रिपिंग दिख रहा है, और जब फ्लैट है तो आप उसकी जगह पे एक दूसरा मास्क कर दो। तो इन शॉर्ट होगा क्या कि जब आपका लैंड कर रहा होगा, जमीन पे आपका पैर होगा, तो इस टाइम पे ये वाला मास्क बाहर होगा, सीन से बाहर होगा, और जैसे ही ये हवा में आएगा वापस इसको ले आओ। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आई डू अंडरस्टैंड। तो इट्स बेटर कि आप लो वर्टेक्स के साथ, कम वर्टेक्स के साथ स्टार्ट करो सिंपली, ओके? ओके ओके, और कोई प्रॉब्लम? बट इसका ये भी दूसरा वाला पॉइंट भी जो मैंने बोला वो भी अल्टरनेटिव, पर उसमें मेहनत थोड़ी सी डबल हो जाती है, बट यू विल फाइंड मोर एक्यूरेसी, ओके? अपार्ट फ्रॉम दिस और कोई, बट दिस फ्रेम यू हैव सिलेक्टेड दैट इज नाइस, मोशन जो आपने लिया है दैट इज गुड, ओके? सो गो अहेड, इसको पूरा करो और करके दिखाओ, दैट्स फाइन। सर सर यस एक विशाल, एक मेरा फुटेज था सर, मुझे उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। ओके ओके, शो मी, शो मी। सर मेरी स्क्रीन दिख रही है? अभी तक तो नहीं, लेकिन दिखेगी, सर आई कैन सर सी। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, जैसे आप पहले इसके मोशन को देखो, इसके कपड़े के ये जो इसने Make it पहन full रखा है। screen. Make it full screen, Vishal. Make it full screen. Hit space bar. Hit space bar. ओह सर, ये ये स्पेस पर ये दबा रहा हूँ मैं। हाँ सर ये जो इसके कपड़े घूम रहे हैं, हाँ। उसके लिए मैं ये नहीं समझ पा रहा कि कितने पार्ट्स लूं मैं इसके कपड़े के लिए। थोड़ा जूम करना फ्रेम को, मैं देख नहीं पा रहा। वो ऊपर कपड़े वाला पार्ट थोड़ा जूम करना। ये मैंने यहाँ कपड़े पे। कपड़े का एक ही मास्क होगा विशाल। ठीक है सर। ऊपर का जो कपड़े का, टी शर्ट का बात कर रहे हो ना? नहीं सर, मैं पैंट्स की हाँ, बात कर रहा हूँ, ये जो अच्छा पार्ट है ना, हाँ अच्छा, पैंट इनकी की बात बात कर करो रहा हूँ। जरा, एक बार और प्ले करके दिखा दो भाई।
ओके यू देखो वैसे तो तुम मल्टीपल मास्क में जा सकते हो बट इट्स बेटर आप एक ही मास्क में जाओ। तो आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि कौन से फ्रेम पे मास्क करो, राइट? यस तो सर। आप वो वाला फ्रेम पकड़ो ना जिसमें सबसे ज्यादा कपड़े का डिफॉर्मेशन है, मतलब कपड़ा जो है वो सबसे ज्यादा बाहर है। कोई ऐसा फ्रेम है बीच में मुझे दिख रहा है, आप उस फ्रेम जब कपड़ा सबसे ज्यादा बाहर फ्लो कर रहा है, हाँ, इस टाइप का कोई फ्रेम, जैसे हाँ इस टाइप का कोई फ्रेम जिसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा है, तो आप इस फ्रेम पे कपड़े को बिल्कुल ड्रॉ करो और बिंदास उसको एनिमेट करो। सर सो वन मुझे एक मास्क इज और सफिशिएंट। प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैं इनको मूव करना चाहता हूँ अप एंड डाउन या लेफ्ट एंड राइट एरो से, जैसे सिलुएट में कर पाता था। Well, I'm so sorry, it's not इसमें happening inside the हाँ, shortcut. No, ये no, it's not taking. बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मेरा दिल कर रहा था मैं सिलुएट में ना कर लूँ। No. I'll give you some options. No, silhouette में नहीं करना है, दिल क्या कर रहा था, इधर ही करना है। इससे ठीक है, और इसमें एक और चीज कर सकते हो कि देखो जो ये कपड़े वाला पार्ट बाहर की तरफ जा रहा है ना, आप उसको एक सेकंड के लिए इग्नोर कर दो और एग्जैक्ट अपना पैंट का जो मास्क है ना वो कर लो। बाद में जो पार्ट बाहर की तरफ फ्लोट हो रहा है ना उसको अलग से मास्क करके रोटो करके उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। जैसे पैर का जो स्ट्रक्चर है सीधा सीधा रोटो कर लिया हमने पैंट को, अब जो चीज बाहर जा रही है उसको जाने दो, भूल जाओ, एक सेकंड के लिए भूल जाओ। ठीक है, जब आपका पूरा रोटो कंप्लीट हो जाए और जो एरिया आपका बाहर की तरफ जा रहा है उसको फिर अलग से एक मास्क करके उसके साथ ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, एक ही साथ मल्टीपल मास्क को संभालने की कोशिश मत करो, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो एक सीधा सीधा पहले मास्क कर लिया जाए और उसके बाद फिर जो चीजें बाहर जा रही है उसको सेकेंडरी मास्क से हम लोग अचीव करेंगे और उसको फिर फाइनली ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके बट सर। नाइस फुटेज यू हैव टेकन, नाइस, गुड। एनीवन एल्स? और कोई? बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, क्यों नहीं कर रहे? तो फुटेज आप ये करोगे आपको बेनिफिट मिलेगा गाइस। फाइनली ऑन योर पोर्टफोलियो यू कैन ऐड सच टाइप ऑफ थिंग्स, यू नो। तो इट्स लाइक ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब बाकी लोग नहीं कर रहे हैं तो फिर छूट जाएगा। और अभी शायद हो सकता है 2-3 सेशन हम लोग इसकी बात करेंगे क्योंकि फिर उसके बाद तो 3D वाला सेक्शन स्टार्ट होगा न्यू का, तो फिर ये सब चीजें रह जाएंगी। So I suggest to all of you, kindly go ahead, select your footage. If you find any queries, difficulties, let me know. I'll suggest you. I'll give you the as much as possible. जो भी support होगा मैं online जितना दे सकता हूँ दूंगा. So go ahead. It's a good thing. Okay? और किसी को कुछ बोलना है या फिर मैं सेशन को एंड करूँ? सर मैंने फुटेज भेजी थी आपको, मतलब फुटेज गया, 2 फोटोज ही भेजी थी फ्रेम की। वो जो कल मैं बोल रहा था कि शूज के जो स्टेप है वो चेंज हो रहा है, वहां पे पॉइंट्स मैनिपुलेट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तुषार राइट ना? कभी भेजा था आपने? कल भेजा मेरे को? नहीं सर, अभी भेजा है। अच्छा अभी भेजा, ओके। लेट मी चेक दिस। आपका भी ऑलमोस्ट कुछ सेम टाइप का ही फुटेज है। हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इट्स लाइक एक बार पैर सीधा और दूसरी बार पैर उठ रहा है ना? हाँ सर वही। देखो ये कॉमन है। देखो एक बार पैर फ्लैट होता है फिर उठता है तो फिर पीछे का पार्ट आता है। वेल गाइस, इसमें अगर आप बहुत टू द पॉइंट एक्यूरेट जाना चाहते हो तो इसमें आपको 2 मास्क डील करना पड़ेगा, यू नो। एक जब फ्लैट होता है तो एक अलग मास्क बनाएंगे और एक जब हवा में उठता है पैर तो एक अलग मास्क बनाएंगे, राइट? और जब जो फ्रेम जहां पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल कि पैर जमीन पे है तो दूसरा वाला जो मास्क है वो सीन से बाहर होगा, और जब पैर हवा में है तो पहला वाला मास्क बाहर होगा, दूसरा वाला मास्क अंदर आएगा। तो उसमें 2 मास्क बना करके आपको चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एक मास्क को मैनेज करने की कोशिश करोगे ना तो वो फाइनली मोशन कम और स्केल ज्यादा कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, 2 अलग अलग मास्क बनाए। ठीक है, जब लैंड कर रहे हो तो उसके लिए अलग शेप है मास्क है, और जब वो हवा में हो तो उसके लिए अलग मास्क है, राइट? ठीक है सर। ओके ग्रेट। और कोई? सर वो दूसरे मास्क को हाइड कैसे करेंगे? हाइड नहीं कर रहा है, आप उसको लेके सीधे सीन से बाहर रख दो ना, कुछ नहीं बोलेगा। आप उसको सीधे सीन से पकड़ो और बाहर रखो, हाइड नहीं करना है। इफ यू आर हैविंग एनी मास्क उसको सेलेक्ट करो और इधर बाहर रख दो। ठीक है, एनीवन एल्स? फाइन, दैट्स ऑल। लेट्स मीट टुमारो and we'll discuss. Right. Thank you guys.